This conference will now be recorded. Yes, so actually this topic was important, so that is the reason I asked all of you should be present, है ना? कल हमने देखा कि कुछ सालों से ना आज इस टॉपिक के ऊपर बहुत ज्यादा रोट लर्निंग क्वेश्चन आने शुरू हो गए हैं बेटे. So you Okay, sir. should know what has to be done, what has not to be done. So that is going to be important. और चैप्टर की खूब सारी रिवीजन मारना. इवन जेई में ही इज आस्किंग अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर पूछ रहा है और फाइनर डिटेल में जा रहा है. इस साल उसने पेंसिलिन में कायरल सेंटर पूछे. तो एनीवे लेट्स स्टार्ट. सो द टॉपिक इज बायोमोलिक्यूल्स एंड कुछ साल पहले इसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होती थी, बट नाउ बिकॉज ऑफ मेरिट इज क्लाइंबिंग, सो दिस चैप्टर हैज become even important. Just a schematic review के what you can do after learning these topic. And strangely this topic is biologist के लिए तो होगा, but ये engineers के लिए it is going to be even important topic because they are the person who will be able to see and control the microscopic level. Biologist तो किसी और प्रकार से काम करते हैं. So this is for even non-medical student also. Biomolecules, the molecules of life. कार्बोहाइड्रेट्स, इसको हम सैकराइड्स बोलेंगे. प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, अमाइनो एसिड, लाइपिड्स एक्सेट्रा, ये हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड के ऊपर ज्यादा स्ट्रेस रहेगा. लाइपिड्स, अमाइनो एसिड के ऊपर ज्यादा स्ट्रेस रहेगा. लाइपिड्स और फैट्स बस एक रीडिंग वाला टॉपिक होगा. इफ हम इसके हायरार्की लेवल पे देखें, लिविंग ऑर्गेनिज्म, सिस्टम्स, organs, tissues, cells, organelles, and here comes the biomolecules, the lowest level pe, the working unit. The most of the biochemical reactions occurs at pH is equal to 7, human body ke aaspas, and the body temperature 37 degrees Celsius and 1 atmosphere pressure. These proceed with high selectivity and at incredible speed. तो जैसे हमारा जो खाना डिजेस्ट होता है, अगर एंजाइम्स ना होते, अगर बायोमोलिक्यूल्स के ढंग से हम ना चलते, तो इट वुड हैव टेकन मोर देन 55 years to digest the same food which you have taken in the morning. The biomolecules, the first topic I'm going to introduce is carbohydrates. आपको एनसीईआरटी को बेस तो बनाना चाहिए, बट एट द सेम टाइम यू शुड बी सीइंग व्हाटएवर इज बीइंग आस्क्ड इन योर कंपटीशन पार्ट. बोर्ड एंगल से ये चैप्टर कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. Carbohydrates have general formula CxH2OY. The water जो रेशियो है 2:1, वही हाइड्रोजन ऑक्सीजन की रेशियो पहले पाई गई, with few exceptions. For example, this is glucose or fructose, 12 and 6, 2:1. 2:1 the sucrose. But we have many other molecules where the ratio is not going to be 2:1 between hydrogen and oxygen. These are also known as saccharides, which are polyhydroxyaldehyde, एक एल्डिहाइड और काफी सारे OH, और एल्डिहाइड की जगह पे कीटोन. थोड़ा सा समय दीजिए, हम इसको देखने वाले हैं. Or compounds which give such compounds on hydrolysis. The modern definition is this: the carbohydrates are polyhydroxyaldehyde or ketones, or the compounds which are going to hydrolyze to produce such compounds. Everything I will be discussing is very important. Everything, right? So NCERT में हो या ना हो, आपने ये चीजें पढ़नी है. Classification of carbohydrates. It is done on many bases, the first being sugars or non-sugars. As the name suggests, sugars मीठे होंगे, पानी में soluble होंगे. Non-sugars मीठे नहीं होंगे और पानी के अंदर soluble नहीं होंगे. He can ask question like this. Subjective में तो कम आएगा. Which of the following is a sugar? Which of the following is not a sugar? These are mono का मतलब होगा single unit, and oligosaccharides अभी पढ़ते हैं. Carbohydrates are made up of saccharides. सबसे छोटे को mono, di, tri, tetra भी बोल सकते हैं, but approximately 2 से 8 saccharides को हम
oligosaccharides बोल देते हैं, which are crystalline solids soluble in water, sweet in taste. Whereas non-sugars, these are polysaccharides, amorphous, insoluble in water, and are going to be tasteless. इनकी ये खासियत होगी. The second classification is based upon whether they reduce Fehling or tolerance reagent or not. That is reducing sugar and non-reducing sugar. Carbohydrates which contain free aldehyde or ketonic groups and reduces Fehling solutions or tolerance reagent are called reducing sugars. All monosaccharides are reducing sugar, and in disaccharide, the maltose and lactose are going to be reducing sugar. In my opinion, you should be making notes. Reducing sugar, monosaccharides, disaccharide में maltose and lactose. इसके ऊपर काफी देर से स्ट्रेस चल रहा है. And non-reducing sugar, if the reducing group, aldehyde or ketonic, are bonded, these are going to be non-reducing sugar. थोड़ा सा समय दीजिएगा. बॉन्डेड और नॉट बॉन्डेड कैसे होंगे, ये हम आगे पायरेनोज और इन सब में से निकलने वाले हैं. तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन वाज शुगर एंड नॉन शुगर, एंड सेकंड क्लासिफिकेशन इज रिड्यूसिंग शुगर एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर. इसका नोट्स बनाना अरमान अपने हाथ से, ठीक, सिनॉप्सिस बनाते हुए नोट्स बनाना बेटे. काफी ज्यादा हो चुका हुआ है टॉपिक, और खासकर नॉन मेडिकल. मेडिकल वालों को तो बायोलॉजी में फिर भी थोड़ा बहुत पढ़ते होंगे, तो नॉन मेडिकल वाले थोड़ा ज्यादा स्ट्रेस करने वाले हैं. Based upon whether these undergo hydrolysis, and so if on the number of product formed. Monosaccharides, these cannot be hydrolyzed into simpler compounds. That will be the last stage. If they contain aldehyde groups, they are known as aldoses. If they contain ketone group, they are going to be known as ketoses. These are further classified as 3 carbon wala, 4 carbon wala, pentose, hexose, etc. The aldose and ketose is going to be the broader classification of monosaccharides. Monosaccharides को दो हिस्सों में काट दिया, aldehyde वाले और ketones वाले. The ketones वाले. तो नंदनी कैसा है? Yes, नंदनी. तो aldoses and ketosis, glyceraldehyde, triose, ribose, glucose, galactose, mannose. Galactose, glyceraldehyde, इनके स्ट्रक्चर अभी बनाने सिखाए जाएंगे. The question can be which is the smallest aldose? The glyceraldehyde. What is glyceraldehyde? Glycerine का aldehyde बनाया गया. That is going to be the glyceraldehyde. And the smallest ketose is going to be dihydroxyketone. Dihydroxy गलत बोल गया, acetone. Dihydroxyacetone is going to be the smallest ketose. Remember, fructose is a ketose. The glucose is an aldose. The simplest monosaccharides, सबसे छोटे, are trioses, glyceraldehyde, and the ketoses, the dihydroxyacetone. अभी अगले पेज पे आने भी वाले हैं. अपने आप में ही क्वेश्चन है, which of the following is aldose or ketose? So the सबसे छोटे वाला monosaccharide, that is the D-glyceraldehyde, aldose. aldose समझ पा रहा है अरमान कौशल? एल्डिहाइड है. Yes, sir. अब डी का क्या मतलब है? एसीटोन याद है ना? तो एसीटोन में सिर्फ क्या डाल दिया बेटे? द OH ग्रुप लगा दिया है. दिस इज गोइंग टू बी, अरमान कौशल, द स्मॉलेस्ट कीटोस, राइट? Apart from that, be prepared which of the following is a ketose, which of the following is the aldose, right?
we are passing through an important phase, a very important phase, right? So एक सेकंड बेटे, 1 मिनट दीजिएगा। तो यस, इसको लेके आते हैं। बहुत ध्यान से, बहुत ज्यादा ध्यान से, सारी आंखें बोर्ड पे के ऊपर। तो एक सेकंड बेटे, लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन। यस, आई एम रेडी। सेंटर पे ध्यान करो। एल्डिहाइड, आई एम सॉरी, कार्बोहाइड्रेट्स में मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म अरमान सिंह सबसे ऊपर लिखी जाती है। रूल्स मेरे नहीं है बेटे, हम सबके हैं। और मैं ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाने वाला हूं। ऊपर CHO लिख दिया। अरमान कौशल 6 कार्बन टोटल बनाने हैं बेटे, 1 2 3 4 5 6, राइट सर? एक गुरु मंत्र, राइट राइट लेफ्ट राइट, नीचे से ऊपर जाते हुए। व्हाट डज दैट मीन? दैट इज राइट पे OH R, राइट पे OH, लेफ्ट पे OH and right पे OH. There is no shortcut to this, right? No shortcut to this. You have to do it. You have to do it. कैसे करोगे, कितनी बार करोगे? I know nobody, कोई ऐसा बंदा मैंने नहीं देखा जिसको नहीं आया, but you should do it. This is going to be D-glycerolaldehyde. जो फ्रक्टोज है, D फ्रक्टोज, the D फ्रक्टोज वो इसके जैसा ही है। The only difference is this becomes keto. This is C double bond O and ये OH आ गया। एक H उठ के, एक H उठ के इधर चला गया। The rest is the same. OH, 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 the H and the CH. This is going to be the D fructose, right? The right, wait, ये गलती होगी बेटे, H, this is H, right, left, but यहाँ पे ये हो गया है। and एक और छोटा, इनसे भी छोटा, राइबोस, ये DNA का स्ट्रक्चर बनाने के काम में आएगा। So this is going to be 5 कार्बन का ये जनाब मॉलिक्यूल है। इसमें राइट पे OH लगे हुए हैं। This is going to be the D-ribose. आपको उसमें ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में बनाया था, अगर लास्ट कायरल कार्बन पे OH is on the right hand side, these are एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन में, कार्बोहाइड्रेट्स में इनके नाम के आगे कैपिटल D लगता है। कैपिटल D is going to indicate absolute configuration. Absolute configuration. All biologically active carbohydrates belong to the D series. Belongs to the D series. यहाँ पे थोड़ी गलती थी, तो इसको मैं ठीक करने वाला हूँ। यहाँ पे H आ जाएगा। ठीक समझे? प्रथम, all biologically active life को जो origin देते हैं, they have been found to be belonging to D series. ऐसे अमाइनो एसिड आएंगे, they all belong to बच्चों L series से belong करते हैं। चल सकते हैं आगे? तो aldose, and this is going to be the ketos, hexoketose, ketohexose, and this is going to be aldohexose, aldehyde, और कितने कार्बन है इसमें? the 6 कार्बन है, तो इसको मैंने एल्डो ये बोला। आगे चल सकता हूं, एंड इसको बोला एल्डो पेंटोस। एक बार दोबारा, the different types of monosaccharides, कार्बन एटम 5 6 7 के ऊपर, जनरल टर्म हेक्सोस, पेंटोस, टेट्रोस, ट्राइओस,
राइट अक्षिता? अगर एल्डिहाइड है एल्डो ट्रायोस, अगर कीटो कीटो ट्रायोस, एल्डो हैप्टोस, कीटो हैप्टोस। ऐसा जो भी स्ट्रक्चर मैंने बनाने हैं वो तुम्हें आने चाहिए बेटे, जो भी स्ट्रक्चर मैंने बनाने हैं वो सारे के सारे तुम्हें आने चाहिए। आगे चलते हैं बेटे। सो दिस इज द डी एंड एल डेजिग्नेशन। Sugars, carbohydrates बोल दो, are divided into D and L family. Remember, this is absolute configuration. It has nothing to do with the chota d and chota l. These configurations are represented with respect to glyceraldehyde. अगर OH group attached to the carbon adjacent to the CH2 OH group, that is the last chiral carbon, is on your right hand side, we call it capital D. If the last chiral carbon पे जो OH है that is present on the left hand side, you just write L glyceraldehyde. For example, मैंने जो भी मॉलिक्यूल बनाए हैं वो हमारी बायोलॉजी को आगे बढ़ाते हैं, लाइफ को आगे बढ़ाते हैं, तो ये इसी प्रकार से पाए गए हैं। क्या मैं आगे जा सकता हूँ? अभी तो एकदम तुम देखोगे, बट बाद में आई अज्यूम कि आप लोग आराम से लेक्चर खोल के बैठोगे और जहां पे मैं स्ट्रेस कर रहा हूं उसको विदाउट एनी टेंशन के बनाने वाले हो, राइट? हम इसको शुगर ट्री भी बोल सकते हैं। ग्लिसरल्डिहाइड कितने कार्बन थे बच्चों? 3। अब मैं इरिथ्रियोस की तरफ लेके जा रहा हूं, इरिथ्रियोस और थ्रियोस, इसमें 1 2 3 4 कार्बन है, तो erythrios is going to have 4 carbon, OH OH, CH2 OH OH। अरमान सिंह समझ पा रहा है बेटे? देख शुगर ट्री बनाते हैं, ठीक है जी। CHO, यस सर, 3 कार्बन, इसमें OH, इसमें OH। नाम बता दोस्त। यस सर, एल्डी, 3 कार्बन। देख बस एक कार्बन ऐड हो रही है, एक OH बेटे, अगर कहीं पे रह गया तो इसकी वैलेंसी हाइड्रोजन से पूरी कर लेना। एक OH और आ गया दोस्त, तो आपके पास कितने कार्बन हो गए मेरे दोस्त? 4। इसका नाम है, पढ़ के बता, डी एरिथ्रोस। स्पेलिंग यहां से देखना, ERYTHROSE, एरिथ्रोस। अब भाई एरिथ्रोस बना दिया, उसमें एक कार्बन और ऐड। हाँ बोलो सर, एरिथ्रियोस है, एरिथ्रोस है? ये सही है, ERYTHROSE। ठीक, दोबारा लिख दूं? चल तुम स्पेलिंग बोलोगे दोस्त, है ना? इनके नाम ही ऐसे होते हैं यार, ये जो तुम फार्मा पढ़ने वाले हो। अरमान स्पेलिंग बोल। अरे THROSE है ना, एरिथ्रियोस, इरिथ्रोस, एरिथ्रोस। मेरी स्पेल या प्रोनाउंसिएशन में भी डिफरेंट, बट आपके जो बायोलॉजी टीचर बोलते हैं वो फाइनल बोलेंगे। बट एनीवे, हमारी लड़ाई कभी प्रोनाउंसिएशन में नहीं है, हमारी लड़ाई आपस में से यूजफुल कंपाउंड कैसे हमें बता के दे सकते हैं उसमें है। तो अर्शी, इसमें कितने कार्बन है? 3। यस सर। इसमें बहना कितने कार्बन आ गए तेरे पास? 4। अब उससे ऊपर चढ़ते हैं, डी इरिथ्रियोस से, द डी इरिथ्रियोस से एक बीच मिस मार गया, तो दिस इज OH एंड OH। देख इसको तो हाथ नहीं लगाएगा क्योंकि ये डी सीरीज को है, ये फिक्स्ड है सारे के सारे में। अगर दोनों OH एक तरफ, थोड़ी स्लैंग मार लें, दोनों OH, हाँ जी गुड़िया, हिंदी के नंबर मत देना, एक तरफ, yes. तो क्या बोल रहा है माता? डी इरिथ्रियोस। डी इरिथ्रोस, यस। एक OH इस साइड और एक OH इस साइड, तो इसको क्या बोल रहा है बहना? पढ़ के बता दे, टेस्ट कौन थोड़ा हो रही है। इथ्रियोस। जब तू फ्री होगा ना बेटिया,
तो आज के दिन में सिर्फ 3 ही याद करना, ग्लिसरॉल्डिहाइड, एरिथ्रियोज, थ्रियोज और ये अगले वाला, क्योंकि ग्लूकोज तो मैं याद करा ही दूंगा। ठीक है, ग्लूकोज में याद Yes. करा ही दूंगा, राइट राइट लेफ्ट राइट, बट हैव पेशेंस, जरूर करना बच्चे, जरूर करना। तो लोग ना बच्चे यहाँ पे आके थोड़ी पेशेंस लूज कर जाते हैं। दीज आर द फैग एंड्स, जहाँ पे आप 70 में से 70 मार्क्स अगर लेना चाहते हो तो यहाँ पे आपको ध्यान करना होगा। लेकिन केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ इजी है, ज्यादातर हम ही नहीं करते हैं बिकॉज इट इज सच ए इजी टॉपिक, बट यू शुड डू इट। आगे चलूं बेटा? Yes, sir. तो देयर इज नो शॉर्टकट टू रेपिटेशन। तो जैसे अरमान ने बताया हमें, इसमें कितने कार्बन आ गए? 4, इसमें कितने आ गए? 3। इरिथ्रियोज में दोनों एक तरफ और एक उस तरफ। अब आ गया आपके पास 5 कार्बन का, अभी छोड़ देगा तो आगे डीएनए के स्ट्रक्चर में बच्चों फंस जाएंगे, आरएनए के स्ट्रक्चर में फंस जाएंगे, तो फंसना तो है ही है। अब देख डी राइबोज, हाउ मेनी कार्बन? 5 कार्बन। द Yes. इसमें कितना था? 4 कार्बन। सारे OH, इसको कोई हाथ नहीं लगाएगा, मैं नहीं कह रहा हूं, ये मदर नेचर कह रही है। दिस इज, ये तीनों एक तरफ, 3 OH on the right hand side, so this is known as हमारा D राइबोस। और लेफ्ट वाला OH एक तरफ, 1 OH on left hand side, 2 OH on right hand side is going to be known as arabinose. सुनो बच्चों, arabinose is not that important, ribose is important, but it is not very difficult or impossible for you people to understand this. Shall I move ahead? आगे चल Yes, sir. सकता हूं? अब इसको शुगर ट्री बोलते हैं जो हम बना रहे हैं। तो अभी हम डी राइबोस में आ गए थे, सारे एक तरफ, Yes, 1 sir. 2 3 4 5। अब इससे ये सारे जन्म लेंगे, मैनोज, ग्लैक्टोज, एलोज, एल्टरोज, ग्लूकोज। मैं याद करा दूंगा, इसमें से मैनोज मेरा तरीका है, मैनोज, ग्लैक्टोज एंड ग्लूकोज इज इंपॉर्टेंट। अगर तुम एलोज का स्ट्रक्चर भूल गए, एल्ट्रोज को, मेरे अभी तक तो मेरे को कभी कोई नुकसान हुआ नहीं है, इनका मैं याद करवा दूंगा। तो हम चले 6 कार्बन पे, इसमें कितने कार्बन थे बच्चों? गलती की तो संभाल लेना, 5। इट इज 6 कार्बन, सारे OH अक्षिता दीदी एक तरफ, क्या नाम है? एलोज। गुड़िया मैं बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी तुमने करना है, ठीक है जी? ज्यादा करेगा तो भूल जाएगा तो 120 में से 100 पे आएगा, अगर पहले ही 80% करके गया, भूल गया तो 60% पे आएगा। और एल्ट्रोज इज ऑन वन साइड, कितने कार्बन है? 6 कार्बन है, 1 OH इस तरफ और बाकी के 5 OH इस तरफ, राइट? दैट इज गोइंग टू बी द एलोज और एल्ट्रोज है। हम हिंदुस्तानी तब तक वहां पे पहुंचे ही नहीं थे, तो इस करके हमें इनके नाम रखने की परमिशन नहीं मिली, ठीक है? अब एक और चीज देख CHO, अक्षिता मेरे साथ रह बेटे, अगर माइक नहीं काम किया तो चीज CHO, पेन उठा लो, सारे के सारे रफ पेज उठा लो प्लीज, मेरे साथ ये स्ट्रक्चर बनाओ, 1 2 3 4 5, अक्षिता बनाओ, CH2OH, राइट राइट लेफ्ट राइट, बना लीजिए प्लीज, कुछ इंपॉर्टेंट है तभी अपने साथ लेके जा रहा हूं, इसको मुझे आगे ट्विस्ट करना होगा। बना ले बहना, ठीक? Yes, sir. एवरीबॉडी राइट, रफ में बना ले। इसको तुम बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं ना, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज है, इट इज मेड अप ऑफ 26 के 27 अल्फाबेट, मैं भूल गया अक्षिता,
The 26. तो ऐसे ये जो बायोलॉजी को जिसको तुम बायोटेक्नोलॉजी बोलते हो, दिस इज मेड अप ऑफ अराउंड 100 लेटर्स, इवन लेस देन दैट। अमाइनो एसिड आएंगे 20 और कुछ Yes, sir. तकरीबन 15 ये आएंगे, बस इन्हीं से भगवान ने पूरी दुनिया रच मारी। कर लिया? Yes, sir. Right. Everybody using right rough pen? Yep. अन्य मेरे साथ है? Sir. अन्य, एक गुरु मंत्र मेरे साथ मन में पढ़। ये क्या है सेंटर में? Glucose. D-glucose. मेरे साथ मन में गुरु मंत्र है ये, ग्लू फॉर गैल, ग्लू फॉर गैल। Gal. गैल से गैलेक्टोज बनेगा। 3, 4, 5, 6, इसको भी कर ही देते हैं। 2, 3, 4, 5, 6। मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म सबसे ऊपर, उसको 1 कार्बन बोलना है। बायोलॉजी वाले भी हमारी मानते हैं IUPAC की। इसका मतलब क्या हुआ गुड़िया, कि अगर आप 4th कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन उल्टी कर देंगे Ulta. ग्लूकोज के मुकाबले, दैट बिकम्स गैलेक्टोज। नन Yes, sir. else changes, none else changes। इसका नाम क्या रहना, पढ़ के बता। D-galactose. गैलेक्टोज। ऑल इंपॉर्टेंट, अभी नहीं करोगे आगे कहीं और फंसा लेगा वो तुम्हें, इसमें करना ही पड़ेगा। कर ले ना, ड्रॉ कर ले, फिर आगे देखते हैं। पर Yes, sir. हो गया. हो गया। एक और रट्टा मार, गुरु मंत्र, बस इसको प्रैक्टिस करना। ग्लू टू मैन, ग्लू टू मैन। ग्लू मतलब बेस, 2 पे चेंज करेगा तो बनेगा क्या? D-mannose. D-mannose। तो यहाँ पे क्या बनाएगा बच्चों? द OH इस पास से और H इस पास से, बाकी किसी में चेंज नहीं होगा। मुझे अभी आने वाले समय में इनको फोल्डिंग में लेके जाना है, राइट? फिशर, बायर स्ट्रक्चर, पायरेनोज, हमने इनको बेंड करने हैं, इनको साइक्लिक बनाने हैं। सो मेरी एब्सेंस में तुम्हें ये चीजें मदद करने वाली हैं। आगे जा सकता हूँ बच्चों? बना लिया? सुनो, एक बार Yes, sir. बना, किसी को नहीं आया, जितना मर्जी कर लो, जितना मर्जी कर लो। तो आगे बढ़े। Yes, sir. This is going to be really erythroz 4 कार्बन, 5 कार्बन, 5 कार्बन। ये सारे के सारे क्या हैं? 6 कार्बन से। 6 carbon. जिनका सपना बड़ा है उनको इनके स्ट्रक्चर पता होने चाहिए, राइट? जैसे तुम्हें टैक्स के पता है, तुम्हें हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें राइट्स पता है, तो बायोलॉजी इन्हीं के बेसिस पे चलती है। सो इफ यू नो इट somewhere here or there, this way or that way, you people deserves recognition, right? तो चल सकते हैं। तो Yes, sir. इंट्रोड्यूस करते हैं एक वर्ड, एपिमर्स। Diastereomers. What are diastereomers? Which have no mirror image relationship. एक बार लिख लेते हैं ताकि टॉपिक पूरा हो जाएगा। ये बेबी बोलेगा diastereomers. No mirror image relationship. MI, mirror image relationship. That is going to be known as what? The epimers. Diastereomers. Epimers. You are right. You are right. तो आप ठीक कर रहे हैं। इन तीनों में क्या कोई mirror image relationship है? No, sir. No. mirror image में तो सारे जो लेफ्ट हैं वो राइट होंगे। So these are going to be known as what? Epimers.
Diastereomers that differ in configuration at only one chiral carbon are called as apimers. Remember, this terminology is used in case of sugars only. उसने क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछा, उसके मूड को हम क्या कर सकते हैं, हम थोड़ा एग्जामिनर है, वो आपको फंसा लेगा. Which of the following are apimers? अरमान सिंह, what are apimers? मैं भूल गया यार. Diastereomers. सिस और ट्रांस पे डायस्टीरियोमर्स है, क्या वो एपीमर्स है? नहीं सर. तो ढंग से बोल. नींद आ रही है तो क्या हुआ? च्युइंगम खा ले. नींद आ रही है ना तेरे को? थोड़ी सी सर. थोड़ी सी नहीं, मैं देखा तेरे को सो रहा था तो झूम गया था. तेरे को पता ही नहीं मैंने पिछले पेज पे क्या डिस्कस किया. पर्ल, प्रथम तुम बताओ, व्हाट आर एपीमर्स? अरमान तुम भी पढ़ सकते हो इतनी देर. नताशा, the diastereomers which differ Pearl at only one carbon atom configuration. These are glue for gal, glue to man must not be forgotten under any circumstance. Because of importance, I'm just stressing them again and again. Right जी, चल सकते हैं. हमने आपको शुगर ट्री में से निकाला, अभी और आगे लेके चल रहे हैं. तो साइंस जितनी पढ़ती रहो उतना आप देखते हैं कि आपको उतना ही कम पता होता है. यस, आई एम नॉट जोकिंग, उतना ही कम पता लगता है. साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज इंट्रोड्यूस किया जा रहा है. द ओपन चेन स्ट्रक्चर. अब हम ग्लूकोज के ऊपर फोकस मारेंगे. तो द साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, द ओपन चेन स्ट्रक्चर which was proposed by Bayer. अभी जो पर्ल तुम राइट लेफ्ट राइट लिख रहे थे ना, this was कौन सा स्ट्रक्चर? Bayer structure. Explained most of the property but could not explain the following. First, glucose does not give Schiff's test. What was the Schiff's test? याद है? कोई बात नहीं, अगर भूल गया तो बिफोर आज सूरज ढले उससे पहले एल्डिहाइड कीटोन्स में एक ये जाके पढ़ लीजिएगा, शिफ्स रिएजेंट क्या था. राइट, 1 डिग्री अमीन और एल्डिहाइड का जब बनता था तो उससे शायद शिफ्स रिएजेंट बनते थे. रोजा एनिलिन हाइड्रोक्लोराइड डीकलराइज्ड बाय पासिंग SO2 गैस व्हेन आगे एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करता था, द पिंक कलर वाज रिस्टोर्ड. यू मस्ट स्टडी दैट. भूल जाना कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ना रिवाइज करना प्रॉब्लम है. Glucose does not give Schiff's test, does not react with sodium bisulfite and ammonia. अरे यार ध्यान से देखो, ये स्ट्रक्चर में तो आपको एल्डिहाइड दिख रहा है, तो जो भी एल्डिहाइड की प्रॉपर्टीज थी वो तो इसको बतानी चाहिए थी. इसको हाइड्रोक्सिलमीन राइट बनाना चाहिए था. सोडियम बाइसल्फाइड अमोनिया के साथ इसको रिएक्ट करना चाहिए था. Pentacetate of glucose does not react with hydroxylamine, indicating absence of CHO group. What is hydroxylamine? तुम लोगों को याद है? RCHO plus NH2OH ऑक्साइन बनते थे. वो 7 प्रकार के रिएक्शन जो अश आपके साथ डिस्कस किए गए थे, कुछ याद आ रहा है बेटिया कि नहीं? तो अगर अभी भूल गया, you should revise it. Mutarotation. Spontaneous change in specific rotation of an optical active compound is known as mutarotation. अभी डिस्कस करूंगा. When glucose is reacted with methanol in the presence of dry HCl, do you remember this reaction? What I'm talking about? If you remember something known as acetals, याद करो what is acetals? Acetal is RCHO. अगर आप इसके ऊपर अल्कोहल डालते थे in the presence of dry HCl, the OR is the negative part that will attack here, the H will go here, अन्य क्या मिल जाता था? OH, H and OR dash बिगड़े. इसको क्या बोलता था? हेमी एसिटल. हेमी एसिटल. Further,
This may react with one more mole of alcohol to form complete acetal. O R dash, O R dash. This is hemi. This is going to be what? Acetal. What is acetal? The reaction of aldehyde with alcohol. नेचर ने इसको बड़ा अजीब डाल के भेजा है. नेचर ने इसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप भी दे दिया है और इसके अंदर OH भी दे दिए. So this can fold intramolecularly. This is going to fold intramolecular. अभी कुछ समय में फिशर प्रोजेक्शन लेके आ रहा हूं. So that is what I'm going to talk about when glucose is reacted with methanol. In the presence of dry acyl gas, it gives two isomeric monomethyl derivative called alpha D-glucoside and beta D-glucoside. Since only one molecule of methanol is used, this must be methyl hemiacetal. कुछ चीज जिसको हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं वो उसके स्ट्रक्चर में हो रही थी. हम सोच रहे थे कि इसका स्ट्रक्चर ये है, बट इसके स्ट्रक्चर में हमें एल्डिहाइड फ्री मिलना चाहिए था. एल्डिहाइड फ्री मिलना चाहिए था एंड जब हम यहाँ पे मिथेनॉल का रिएक्शन करवाते हैं हमें कायरलिटी मिल रही थी. So there was something which is happening here. The cyclic structure of glucose explained most of the property but could not explain the following. Page number 22. Returning back, just give me a few seconds. तो एक सेकंड. आपके क्वेश्चंस कुछ. What are monosaccharides? What are reducing sugars? ये भी करवाता हूँ, ये भी करवाता हूँ. Enumerate the reactions of D-glucose which cannot be explained by its open chain structure जो तुम्हें अभी पढ़ाया जा रहा है. Be prepared for this type of question. वही जो भी कराया था. The CHO होने के बावजूद it is not giving you Schiff's and DNP. It does not react with sodium hydrogen sulfide NaHSO3 to form the addition product. Penta-acetate of glucose does not react with hydroxylamine, showing the absence of free CHO. आज तेरे को ये समझ आया गुड़िया पेंटाएसिटेट क्या कर रहा हूं आज? हम बोल बेटे. तो पेंटाएसिटेट नहीं है. लो जी अभी करते हैं, तभी तो पूछ रहा हूँ बेटा तेरे से कि तू मेरे से बात करेगा तो मैं जवाब अच्छा दे पाऊंगा. पर याद करना इसको पढ़ना है वहां से एल्डिहाइड कीटोन से. देख. यस सर. ROH plus HO C एसिटिक एसिड. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होते थे अल्कोहल. ये क्या बनते थे? एस्टर्स नहीं बनते थे. यस सर. So this is what monoacetate. Monoacetate. CH3CO is known as acid. This is known as acetate. अरे it is ठीक है. है ना. C2H5OH plus CH3COH ethyl acetate. अब ये देख बेटिया, अभी अभी तुमने मुझे बताया, अभी मैं स्टीरियोकेमिस्ट्री का ध्यान नहीं कर रहा हूँ. ठीक है जी. ये कितना आ गया 4 और ये कितना आ गया CH2OH. अगर इसके ऊपर एसिटिक एसिड डालेगा तो मुझे इसके 5 मॉलिक्यूल लग रहे थे एसिड के और मिलता क्या है CHO. ध्यान से देख CHO CO CH3 4 और नीचे क्या आ गया CH2O CH2 CH3. इसको क्या बोलता है मैं भूल गया, पढ़ के बताएगा. एसिटेट. कौन सा एसिटेट? Pentacetate of glucose. Why penta? Because 5 acetic acid react किए, 5 acetate group आए. Are you able to see CHO group here? Yes sir. It should be giving you test for CLDA, but it does not react with hydroxylamine. गुड़िया तेरे को hydroxylamine का reaction याद है कि नहीं? I want honest reply. Right? तो थोड़ा तो कोई बात नहीं, हम कर लेते हैं, है ना. तो
हाइड्रोक्सिलामीन, व्हाट इज हाइड्रोक्सिलामीन बहना? ये तो इसमें से क्या Yes, निकल, water. कहाँ किया था, बस ये बताने का अगर मुझे बताए तो आई विल बी वेरी हैप्पी, नहीं भी बताएगा तो मैं बता दूंगा। एल्डिहाइड एंड कीटोन के अंदर किया था। थोड़ा और सात रिएक्शन। सात Yes, sir. टीएनपी और ये ऑक्साइम, ये सब कुछ बनाए थे तुमने, है ना, हाइड्राजीन के। सो दैट वाज अ केस। सो something is happening in the glucose that it is not giving aldehyde वाले टेस्ट नहीं दे रहा है। So these results show that glucose के अंदर कुछ चल रहा है जो नेचर उससे कुछ बनाने की कोशिश कर रही थी। तो हमें डिस्कवर हुआ कि ग्लूकोज जनाब एसिटल बनाते हैं, ग्लूकोज एसिटल बनाने की कोशिश करते हैं। देखते हैं कैसे। ये स्ट्रक्चर आपको कराया गया, राइट राइट लेफ्ट राइट। कोई भी गड़बड़ी यहाँ हुई बच्चों आगे रिफ्लेक्ट होगी, कोई भी गड़बड़ी यहाँ होगी तो आगे रिफ्लेक्ट में वो आएगा। तो बेदी आज के साथ ही अनम्यूट मेरा वीडियो, मुझे पता है तुम लोग बायोलॉजी के एक अच्छे स्टूडेंट बनने वाले हो, सो दिस इज रिक्वायर्ड। खासकर जो रिसर्च में जाना चाहते हैं दे शुड बी मोर ओपन टू दिस टॉपिक। तो बेदी दीदी एक बात रिवीजन मारते हैं बेटे, अभी अभी कराया दोबारा करा देता हूं, दैट इज नोन एज हेमीएसिटल। समझ आ गया? व्हाट इज हेमीएसिटल गुड़िया? हेमीएसिटल is formed by reaction of aldehyde plus alcohol, तो इससे तेरा क्या बनता था? एसिटल। acetal, एक और कॉन्सेप्ट है, जो 5 and 6 मेंबर्ड रिंग है नेचुरल तौर पे वो क्या है? stable, स्टेबल है। तो आप ज्यादातर ये देखते हैं, अब सारी आंखें बोर्ड पे, ठीक आपके लिए यहाँ पे बना हुआ है, बट अगर आप मेरे साथ बनाएंगे तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर वे। बेटी गलती तुम्हारी, ड्राइंग मेरी, समझ आ गया? इस तरीके okay, से हम दोनों टोस पे रहेंगे, ड्राइंग मेरी और गलती तुम्हारी, उल्टा हो नहीं सकता है कि तुम ड्रॉ कर नहीं सकते हो। तो गुड़िया ये ग्लूकोज नजर आना शुरू हो जाएगा, OH राइट राइट लेफ्टो राइटो। समझ गया बहना? This is important because all biologically active molecules are optically active. कुदरती तौर पे उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है that is because of optical activity है। जैसे आपके घर का लॉक और मेरे घर का लॉक दोनों एक चाबी से नहीं खुल सकता है बिकॉज उसका अंदर का स्ट्रक्चर और है, तो वहां पे एक पर्टिकुलर की आके लॉक होती है। ऐसे all biochemical reactions are like locks, they cannot be opened by anyone, so nature has kept them under lock and key. लॉक उसने लगाया है, की भी उसी ने बनाई है, तो अगर उस मॉलिक्यूल को उसकी चाबी मिली तो वो रिएक्ट करेगा, अदरवाइज वो रिएक्ट नहीं करेगा। इट इज एज सिंपल लाइक दैट। okay sir, तो जल्दी नहीं करेगा, जल्दी करेगा तो अभी गड़बड़ होगा, ठीक? छोटा यूज कर रहा हूं, 2 3 4 5 6, छोटा, राइट? तो अब मैं इसमें इंट्रा मॉलिक्यूलर एल्डोल बनाने वाला हूं। 1 कार्बन और 5 कार्बन, 1 कार्बन और 5 कार्बन। देख ध्यान से, इधर H नजर आ रहा है बेटा तेरे को? yes sir, तो 5वें वाला जो H है वो जनाब जा रहे हैं ऑक्सीजन को, इसका जो नेगेटिव पार्ट है वो जा रहा है कार्बोनाइल कार्बन को, राइट एमी? वो कहाँ जाने लगा है? तो अब देख, पहली वाली कार्बन पे जो sp2 थी अब वो sp3 बन जाएगी। yes sir, आपका इस तरफ आ गया, आपका OH इस तरफ आ गया, देखना ये OH बन गया। बहुत ध्यान से, मैंने कहा गलती तुम्हारी है,
ठीक, अर्श को भी ले लेते हैं ना, आराम से बैठिए, तो उसकी भी गलती है। तो अर्श जरा चुकन्ना रहे, सेकंड कार्बन, अर्श वेरी स्लो, राइट बेटिया। सो दिस इज गोइंग टू बी कौन सी कार्बन, थर्ड कार्बन। दिस इज गोइंग टू बी बहना कौन सी कार्बन, फोर्थ कार्बन। Fourth. फिफ्थ पे आ गया। अब ये किससे जुड़ा गुड़ा, ये O जुड़ा से. ऑक्सीजन से जुड़ा, समझा। इसको प्लीज बॉन्ड लाइन नोटेशन मत लेना, यहाँ पे कोई कार्बन एटम नहीं है, यहाँ पे कोई कार्बन एटम नहीं है, ये मैं फर्स्ट को और 5 को जोड़ रहा हूँ गुड़िया। और अर्श दीदी इसको CH2OH, एक बार नंबरिंग कर दें, आपकी आंखें पहचानेंगी, 2 4 5, ठीक है जी, and 6. This molecule is named after, right? We are not politicians, so we should say why this is known as beta D glucose. इसका नाम राम प्रसाद रखना चाहिए था, प्लीज, नथिंग लाइक दिस, रख दिया बीटा डी ग्लूकोज। और सुनो, ये क्या है आज, मैं भूल गया, तुम्हें याद है कुछ? किसी को याद है? Yeah, angle of rotation. स्पेसिफिक रोटेशन, यप, थीटा डिवाइडेड बाय L इंटू C। याद करने का है, करने का है, ठीक है जी, है तो है। लाइक आपके पापा के, आपकी मम्मा के, आपके अपने फिंगरप्रिंट्स हैं, और उनकी आपकी लाइफ में एक इम्पोर्टेंस है जो कि कभी भी कम नहीं की जा सकती है। इनकी इम्पोर्टेंस है, आप और मैं जिंदा हैं, हमारे सब ये काम चल रहा है बिकॉज ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स, काम चल रहा है। एंड आप यहाँ से अगर रशिया जाएंगे या पाकिस्तान जाएंगे या अंटार्कटिका जाएंगे, लाइफ में ये मॉलिक्यूल चेंज नहीं होंगे। अब देख एक और चीज देख, तो अक्षिता दीदी सी गुड़िया क्या कहने वाला हूं। अब अक्षिता, ये जो H था, वो जो भी तेरे राइट हैंड साइड पे, लेफ्ट पे भी तो आ सकता है, अरे यस सर। चांस की बात है। तो अक्षिता फर्क देख, इसमें H राइट पे ले गया, इसमें OH यहाँ पे ले आया, उल्टा कर दिया बस, ठीक है। यस सर। बेदी चेक करता रहा। तो अक्षिता तुम भी चेक कर रहे हो, मेरे यहाँ से गलती ना हो जाए, तो मैंने पढ़े लिखे बंदे साथ में लगा रखे हैं। तो ये कौन सी कार्बन बन रही है अक्षिता? अक्षिता आवाज नहीं आई? OH, समझा? This is known as alpha D glucose. ग्लूकोज शिफ्टिंग कर गया, साइक्लाइजेशन में चला गया, एल्डिहाइड ग्रुप का हैप्पी बर्थडे हो गया, एल्डिहाइड के रिएक्शन उसने शो नहीं किए। कुदरती तौर पे इधर भी जा सकता था, इधर भी जा सकता था। इसकी मुझे रटा हुआ चाहिए, ठीक, प्लस 112 डिग्री, मुझे याद चाहिए, प्लस 112 डिग्री। सो ग्लूकोज के अंदर कुछ ऐसा हो रहा था कि हमें उसका CHO ग्रुप के टेस्ट नहीं मिल रहे थे। तो हमने ऐसा पाया कि ग्लूकोज में C1 एंड C5 मिलके एक साइक्लाइजेशन की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, बिकॉज नेचुरली द 6-membered रिंग इज वेरी स्टेबल। अरमान सिंह, मैंने ऐसा रट्टा मारा था, अगर तुझे अच्छा लगे, देख राइट को R की तरह ऐसे लिखता ना, ठीक, तो जो राइट, याद करने का तरीका बस, और कुछ नहीं है, प्लीज इससे ज्यादा तूल मत देना। जो OH आपका राइट हैंड साइड पे है, अरमान सिंह उसको क्या बोलेगा? अल्फा डी। बस एक को याद रख, जो OH राइट हैंड साइड पे है वो क्या है? अल्फा डी ग्लूकोज। राइट हैंड साइड पे 112 डिग्री है, जो OH लेफ्ट हैंड साइड पे है उसको क्या बोलेगा? बीटा डी ग्लूकोज, और उसकी स्पेसिफिक रोटेशन 19 डिग्री है। अभी अभी तुम लोगों को मैंने क्या कराया था?
एपीमर्स। अरमान सिंह अब रीटेस्ट हो जाएगा कि तू अभी भी सो रहा था अगर आप एपीमर्स को नहीं डिफाइन कर पाए। सर डिफर बाय ओनली वन कायरल कार्बन। बात पर पूरा बोल। कॉन्फ़िगरेशन डिफर बाय अराउंड एनी कार्बन यस एटम, सर एनी वन, एटम। एनी वन, राइट। अब अरमान सिंह एक नई चीज इंट्रोड्यूस करता हूं बेटे, एनोमर्स। एनोमर्स वो होते हैं जिनकी कॉन्फ़िगरेशन डिफर करती है अराउंड, ये देख क्या लिख रहा हूं, फर्स्ट कार्बन एटम। उसमें किसी एनोमर है सर। D4 गैलेक्टोस, ग्लू4 गैल, ग्लू2 मैन, याद किया। सो अल्फा डी और बीटा डी ग्लूकोज आपस में क्या है बच्चों, एनोमर्स। एनोमर्स। Glucose forms hemiacetal between CHO group carbon 1 and OH group on C5। अगर तुमने वहां पे C4 कर दिया तो आपको पूरा अधिकार है कि आप किसी और गैलेक्सी में जाके लाइफ बना सकते हैं। बट जो धरती पे रह के काम कर रहे हैं उनके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस एक नहीं, अरबों नहीं, करोड़ों नहीं, मे बी ट्रिलियंस ऑफ ट्रिलियंस है कि यहाँ पे धरती के ऊपर जितने भी लिविंग सिस्टम है वो सिर्फ C1 और C5 के बीच में हेमिएसिटल बनता है, resulting into Arman Singh C1 becoming chiral, forming two isomers differ in orientation of beta H and OH around C1 atom. These isomers, the one which differ in configuration around C1 atom, are called as what? Anomers. समझा बेटे? What are anomers? Anomers which differ in configuration around C1 carbon atom. पर प्रथम अगर बात कर सकते हो नताशा, एमी, तो एक स्टेटमेंट दे रहा हूं, एवरीबॉडी लिसन एंड आंसर, क्या मैं गलत हूं कि सही? ऑल एनोमर्स आर एपीमर्स। ऑल एनोमर्स आर एपीमर्स। ट्रू और फॉल्स? So true. True. क्योंकि 1 कार्बन 2 कार्बन 4 कार्बन किस पे भी होंगे, क्या होंगे? द एपीमर्स। बट ऑल एनोमर्स आर नॉट एपीमर्स। ठीक, बेदी अक्षिता मन में बोल, एनोमर्स C1 नहीं क्या सर, ऑल एपीमर्स आर नॉट एनोमर्स। तो मैं भी तो वही बोल रहा हूँ, आपने उल्टा बोल दिया था। तो रिपीट कर देता हूँ बेटे, ऑल एपीमर्स कैन बी एनोमर्स और ऑल एनोमर्स कैन बी एपीमर्स। एपीमर्स में C1 C2 C3 C4 सारे कवर होते हैं। एनोमर्स में सिर्फ कौन सा कवर होता है बच्चों? द फर्स्ट कार्बन इज गोइंग टू बी कवर्ड। एनीवे, बात समझ गया ना अरमान सिंह? एनोमर्स C1, एपीमर्स C1 C2 3 कहीं भी हो सकता है। आप अल्फा डी बीटा ग्लूकोज को एपीमर्स भी बोल सकते हैं, बट टू बी प्रिसाइज दे आर गोइंग टू बी कॉल्ड एज व्हाट? एनोमर्स, राइट। अब बच्चों हम ये स्ट्रक्चर बनाए थे, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये वाला जो सेंटर वाला स्ट्रक्चर है, इसको बोला गया किसी साइंटिस्ट के ऑनर में द बायर स्ट्रक्चर, द बायर स्ट्रक्चर्स, और इसको बोला गया द फिशर, इसको बोला गया फिशर स्ट्रक्चर। यू अंडरस्टैंड द बायर स्ट्रक्चर एंड द फिशर स्ट्रक्चर? तो दैट इज गोइंग टू बी, बस नाम रखे गए, कोई खास बात नहीं हुई। अगेन द सेम थिंग, ओपन चेन क्या बोला इसको? बायर। क्लोज चेन क्या बोला बच्चों? द फिशर स्ट्रक्चर। Remember 5 and 6 member ring are found to be, हाँ जी, exceptionally stable binary। चल सकता हूँ, आगे बढ़ा जाए, किसी को कोई दिक्कत? Yes, sir. वेरी गुड। ये बायो में आते हैं तेरे पास कि नहीं? यस सर, हमने ज्यादातर चीजें की हुई है, वो रोटेशन, स्पेसिफिक रोटेशन नहीं किया था।
स्ट्रक्चर बनाया है? काफी बनाए थे हमने। हमने वो जो चार्ट सा था वो नहीं किया था, पर कुछ कुछ तो बनाए हुए हैं। शुगर ट्री, बट हाँ हम बायो से वो किसी और प्रकार से जाते हैं, हम किसी और प्रकार से आगे जाते हैं, क्योंकि ये बायोकेमिस्ट्री आ गई है। अब ये बेदी दीदी बायर स्ट्रक्चर, बायर से कौन सा बनाया डॉली तूने? फिशर। स्ट्रक्चर। अब और आगे बढ़ने का समय आ गया। पायरेनॉज स्ट्रक्चर, द पायरेनॉज स्ट्रक्चर, ये रिंग को बोला जाता है पायरेनॉज रिंग। पायरेनोस। तुमने बायोलॉजी में देखा होगा। यस सुन, सर। कुछ खास बात है तो एक सेकंड उसी को स्ट्रक्चर को दोबारा बना ले। सुन, एक मिनट मीडिया मेरी मदद करेगा। COH राइट हैंड साइड पे H2 3, मीडिया चेक करते रहना। CH2H। इसको इसके साथ ज्वाइन कर दिया, राइट गया, राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट। श्योरिटी है कि डाउट है? कहते पीछे से चेक कर ले। सर वापस थर्ड वाले पे H डालना है। बाकी पक्का है? ठीक है, ये सर अल्फा है ये। हाँ अल्फा है वो, क्योंकि ये राइट हैंड साइड पे था। दैट्स वेरी गुड। अल्फा डी क्या है? ग्लूकोज है। अब इसको पायरेनो स्ट्रक्चर में ड्रॉ करना है। सुन एवरीबॉडी प्लीज, नॉट इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बात करेगा अक्षिता, हर्ष और ये हमारी वेदी। अनम्यूट रखो बेटा, जहां तक हो सकता है कोई डिस्टर्बेंस। तो अक्षिता हेक्सागन Yes, बना, sir. राइट, और जो ऑक्सन है उसको अपर राइट हैंड साइड पे लगाएगा। Okay, ये sir. बाकी कार्बन है, ऐसा ऐसा और ऐसा, ठीक। Yes, sir. क्लॉकवाइज में नंबरिंग करना, एक छोटा लिखना, 3 4 5 6 मेंबर बनानी। जो 6वें पे नंबरिंग कर दे, 2 3 4 5 6, ठीक। आज Yes, sir. 5वें कार्बन पे CH2OH है, इसको बैक के जैसे ऊपर लिखना है, Okay, sir. याद रहेगा। तो तुम में से कोई लॉस एंजलिस गया? बेटी बोलेगी मैं गई हूँ। नो सर। बड़ा अच्छा शहर है बेटी, मैं पिछले साल धक्के खा रहा था वहां पे ना। तो बेदी लॉस एंजलिस को क्या बोलता है? LA। गुरु मंत्र है, ठीक है। L से क्या बनाना है? लेफ्ट। A से क्या बनाना है? अबव, अबव। ठीक। ये मेरे और आपके बीच में LA, भूल लेना का नहीं है। चल बेटी, गलती तुम्हारी, ठीक ठीक काम मेरा। 1 कार्बन पकड़ लेते हैं डॉली। इसका मतलब हुआ जोन से भी ग्रुप तेरे बेटे जो लेफ्ट साइड पे आ रहे हैं उनको अबव रखना है, ठीक है। ओके सर। 1 कार्बन पे OH तेरा कहां पे है गुड़िया? राइट साइड पे। तो तो उसको बिलो कहां? आएगा। दूसरे कार्बन पे OH तेरा राइट पे है, ये भी बिलो। नीचे आएगा। तीसरे पे बहना ये लेफ्ट साइड पे है, लाल से बना देते हैं ना, तो भूलने का मतलब खत्म हो जाता है ना। तो खतरे की घंटी लगा देते हैं,
ये कहाँ आएगा, OH ऊपर above. आएगा, राइट जी। तो एक सेकेंड बेटा, ये चौथे पे चल रहा, OH बिलो आएगा, पांचवे पे तो वैसे ही डाला हुआ था, बाकी की वैलेंसी माता सेट कर मार, Yes, sir. दिस इज अल्फा डी, अरे ये क्या लिख रहा हूं, ग्लूको Pyranols. स्ट्रक्चर। आज तेरे को पता लग गया मैंने क्यों बुलाया था कि आज छुट्टी नहीं करने की। Yes, sir. Yes, sir. अल्फा डी ग्लूको पायरेनोल स्ट्रक्चर, अल्फा डी ग्लूको पायरेनोल। बेटे खूब बार बनाने हैं, देखो अभी कोई टेंशन तो है नहीं तुम लोगों के ऊपर, किसने कहा कि आज शाम तक खत्म करने हैं, कल शाम तक खत्म करने हैं ना, बट एट द एंड ऑफ द डे यू शुड लर्न देम विद हार्ट, बाय हार्ट, राइट। अल्फा डी ग्लूकोपायरेनोल्स एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है, पढ़ना भी ठीक होता है। अभी जो हमने पीछे फिशर प्रोजेक्शन बनाई, अब उनको हम पायरेनोल्स और हेवॉर्थ प्रोजेक्शन में करने वाले। अल्फा डी बीटा डी may be drawn in a simple 6-membered, और सुनो, leave anything aside, this is your NCERT का syllabus है, leave anything aside, don't think कि this is the competition part. Draw hexagon with the oxen atom. अर्श मुझे पढ़ नहीं रहा, दिख नहीं रहा, तेरे को दिख रहा है? Yes, sir. Upper right hand corner. ये जो मैंने बनाया था गुड़िया, ये वही है, मैंने इसको ऐसे लिखा था, इसने जनाब ने CH को इधर ले आया, ये पांचवी कार्बन को एक ही ढंग है ना, ये देख एक को इधर रखा हुआ है, उसने ऑक्सीजन को ऊपर से ले गया है, समझा जाएगा, हम यहाँ से लेके गए ना, ये ऑक्सीजन को यहाँ आके इधर से ले आया, इट इज नॉट अ डिफरेंट थिंग, इफ यू वांट टू ड्रॉ दैट आई कैन यूज दैट थिंग ऑल्सो, बट आई होप यू अंडरस्टैंड ना, समझ गए। अब ऑक्सीजन ये प्लेस टर्मिनल CH2, मतलब इसकी नंबरिंग ऐसे ही करनी है, अगर नहीं करोगे तो आगे न्यूक्लियोटाइड्स और इन सब में फंसने वाले हो, सारे न्यूक्लिक एसिड इनमें से निकलेंगे, हालांकि हम राइबोज में चल जाएंगे, ऐसा कर लेंगे। अब CH2OH कहाँ रहेगा, ऊपर ही रहेगा। प्लेस ऑल ग्रुप्स विच आर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड अबव द प्लेन, दैट इज द रीजन बेटे तेरे को लॉस एंजलिस का एग्जांपल दे रहा था। Yes, sir. तो सिर्फ TJ कार्बन पे OH कहाँ है, इधर है ना, तो ऊपर है। Yes, sir. बाकी सब में नीचे है ना, Yes, sir. एसिड लॉक किया जाए। ये किसका स्ट्रक्चर बना, अल्फा डी ग्लूकोपायरेनॉल, अल्फा डी ग्लूकोपायरेनॉल। तो चलो जी थोड़ी और मेहनत करते हैं, अगर इसको यहां से शिफ्टिंग कर दी जाए, ठीक है, तो अगर इसको इधर ले आए तो इसको क्या बोलते थे बेदी, मैं भूल गया, बीटा डी, Beta D. Beta. और बाकी तो कोई चेंज होना नहीं है ना। Yes, sir. तो अब की बार इसको रेड पेन यूज करता हूं बेटे, तो इसको रेड पेन यूज करता हूं, एक सेकेंड में देना। तो दैट इज जस्ट कि आपकी आंखें पहचान ले, ये OH कहाँ चला गया, इधर चला गया, और इसको क्या लिख दूं यहाँ पे, Beta. डी ग्लूकोपायरेनॉल्स। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. सारे काम इसी से चल रहे हैं। कुदरत ने 31 पेज पता नहीं क्या किया, उसने सब कुछ इसी से रच मारा, सब कुछ इससे रच मारा। सी गिव मी फ्यू सेकंड्स, जब उसने जो भी चीज डाइसैकराइड्स में घुसेंगे, शायद अभी तो देर लगेगी, सुक्रोज, एवरी पोजीशन हैज बीन फिक्स्ड, इट्स डाइसैकराइड आएगा, अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा फ्रक्टोज, अभी बीटा फ्रक्टोज दिया ना, इसका C1, इसका C2, अल्फा, so that will be combining in this way। तो ये सारे स्ट्रक्चर आपके काम आने वाले हैं।
So take it more seriously. And again, मैं तो देख रहा हूँ कि ये ना हर साल इनके ऊपर क्वेश्चन रोट लर्निंग टाइप बढ़ते चले जा रहे हैं. तो बीटा डी ग्लूकोज आगे जा सकते हैं बेटे, नॉट अ बिग Yes. इशू. मैंने Yes. दो इकट्ठा करने की भी कोशिश की थी. तो अल्फा डी में और बीटा डी में, बीटा डी में 1 and 3 ऊपर और अल्फा डी में सिर्फ 3 ऊपर, सिर्फ 3 वाला ऊपर. द वे यू लाइक इट, इट्स एंटायरली योर ऑप्शन दैट आप इसको कैसे करने वाले हैं. और अगर इनमें एनोमर्स बनाएंगे तो इनको इकट्ठा करें तो व्हाट इज द डिफरेंस? द डिफर्स एट ओनली C1. C1 पोजीशन पे ये डिफर करते हैं. क्या हम आगे जा सकते हैं? Not a big thing. Anomers, that's the only thing. They are going to differ. तुम्हें एक अंदाजा नहीं है काम हम क्या कर रहे हैं, बट ये अच्छा काम हो रहा है. बीटा ग्लूकोज in truth in experimental position has been found to be more stable than alpha glucose. बीटा ग्लूकोज में दोनों ऊपर हैं, सिर्फ फर्क तो यही है, one OH is on the axial position, right? Beta glucose is more stable. Alpha and beta are called as apimers, and अगर C1 पे हो तो उनको anomers भी बोला जाता है. In beta glucose the OH कहाँ पे बेटे? C1 पे ही तो डिफरेंट हुआ था सिर्फ, is at equatorial position, which is more stable than OH at axial position in the alpha form. So which is going to be more stable? The beta glucose is going to be more stable. Mutarotation. When either of alpha or beta form of D glucose, आप अल्फा से चले 112, बीटा से चले 19 डिग्री, ये बेदी करती है अल्फा डी ग्लूकोज जिसकी इनिशियल रोटेशन है 122 डिग्री स्पेसिफिक, उसको डिसॉल्व करती है. और अक्षिता करती है द बीटा डी ग्लूकोज जिसकी इनिशियल अल्फा रोटेशन इज 19 डिग्री पे है. दोनों कुछ समय के बाद एक इक्विलिब्रियम स्पेसिफिक रोटेशन 52.7 पे पहुंच जाते हैं. How it happens, and this phenomena is going to be known as mutarotation. When either of alpha or beta form of glucose is dissolved in water, the chain or the ring open and again close in the same or inverted position gives a mixture of alpha and beta form. Thus, starting from either alpha or beta, you end up having dono forms in an equilibrium mixture that is going to be known as what? The mutarotation. What is mutarotation? That is, आप इससे चले the beta D से और आप इससे चले अल्फा डी से, हमारी रिंग खुल गई. अब रिंग खुल गई, it may go either here और इधर है. और अगर आप अल्फा डी से चले आपकी रिंग खुल जाएगी. अब खुल के जब वो दोबारा बंद होगी तो इट इज एंट्रोपी प्रोबेबिलिटी फैक्टर, इट कैन गो इन ईदर वे. मुझे बेटे ये डाटा याद चाहिए. मुझे इसलिए याद चाहिए है क्योंकि आई हैव सीन कि इसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे एंड दे आर % द नॉलेज बेस्ड रोट लर्निंग बेस्ड ये स्ट्रक्चर होने वाले हैं. Is it okay? आगे जा सकता हूं. So that is हम लोगों ने आपको ग्लूकोज से पहले तो किए ही किए हैं, आपसे ग्लूकोज के अल्फा एंड बीटा डी ग्लूकोपाइरेनॉज, पाइरेनॉजिस रिंग की वजह से इसको बोल दिया जाता है, ये स्ट्रक्चर की. Similarly, there is going to be one more important 6 कार्बन वाला आपका the fructose पाया गया है, fructose. That is also going to show the ketal formation. Ketal. Now
This happens between the second and the 5 carbon. The second and the 5 carbon. You are going to draw it yourself. You are going to draw it. I'm just giving you the picture how it happens. The one पे the H goes to oxygen H and oxygen goes to गुड़िया इधर. समझा? तो ये जो 1 वाला है, अब वहां पे H आया था, यहाँ पे बेटे क्या आ गया तेरा? CH2OH. वहां पे H था, है ना? यहाँ पे OH, and this is going to be formed. 1, 2, 3, 4, 5 membered ring बनेगी यहाँ पे. समझ पा रहा है? क्योंकि ये CH2OH is attached on the position of hydrogen. Is it Yes. clear? Not clear. वहां पे H था, ठीक, और यहाँ पे ये कार्बन हमारे पास ऐसा आ गया है. You will draw it alpha D fructose. You should draw it, and you will get what? Alpha D fructopyranose. इस रिंग को ऐसे बनाया जाता है 5 membered में. Fructopyranose. That was glucopyranose. You will draw it, right? You will draw it. Third Okay, sir. position. थर्ड पोजीशन पे OH कहाँ है? लेफ्ट पे था. ये देखो थर्ड पोजीशन पे ये कहाँ पे है? राइट. और अगर आप इसको बनाएंगे, so that can also be drawn here, the beta D fructose. बना सकते हो? तो 1 मिनट में पीछे गलती कर गया, ये OH को भी छोड़ गया. सेकेंड पोजीशन पे CH2OH था. सेकेंड पोजीशन पे CH2OH कहाँ आया है? ऊपर आया, लेफ्ट अपर, ठीक है जी. एंड इसमें हमारे पास ये हमने ये नीचे ले गया है. इसमें ये राइट साइड पे है बीटा में. दिस इज द नीचे. दैट इज गोइंग टू बी योर होमवर्क. ठीक है जी. You people are going to draw it and must draw it. इसमें कोई छोड़ने वाला आपके पास बात ही नहीं है. तो एक just drawing it again for your purpose. Can you answer this question? D. B or D? Animal. One thing more, mute operation याद है? What is the answer? 75th. Anchit? C. Neuter rotation. Mute rotation. Repetitions are anomers of fructose. Not a big issue. कर लिया? Yes, sir. फ्रक्टोस पेंटागन. अभी भी जो मैंने आपको होमवर्क दिया, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ, एक मिनट, मैंने वहां पे पाइरेनोस तो नहीं लिख दिया, फ्यूरेनोस लिखना था. दिस इज गोइंग टू बी 5 membered is फ्यूरेनोस and 6 membered is ये ग्लूको, ये फ्रक्टोफ्यूरेनोस. फ्यूरेनोस. Yes, sir. हमने नीचे pyranose किया है. लिख दिया. अभी इसको ठीक कर देता हूँ मीडिया. So that has been drawn. एक मिनट अर्श, अभी ठीक करके आते हैं वीडियो, है ना? तो मैंने कहीं पे, यहाँ पे ठीक है, मैंने कहीं पे पायरेनोस आया है खुद. हाँ? वहां पर, यहाँ ये पर है. राइट. फ्रक्टो फ्यूरेनोस. यहाँ भी ठीक करें. यहाँ पे ऐसा ही लिखा था, फ्रक्टो फ्यूरेनोस.
एक मिनट बेटे ये कर लें क्योंकि आगे गड़बड़ चल जाएगा, है ना। बस यहीं पे था, ग्लूको, पायरेनोस एंड फ्रक्टो, ये we will not go beyond it because आपका बहुत सारा होमवर्क तैयार है. We will move ahead with the reactions of glucose and then we will be moving towards the disaccharide. आपकी केमिस्ट्री का एक बहुत बड़ा रिएक्शन आएगा, Lobry, D, Bryan, Vaughan, Atkinson reaction. But it will be interesting topic really. वर्स्ट अभी थोड़ा सा आज चलेगा और थोड़ा सा अभी अगली क्लास में आना है जब हम डाइसैकराइड्स की तरफ बढ़ेंगे. बट एनीवे करना तो पड़ेगा ही, और इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड. वी वोंट गो फर्दर मेरे बच्चों यहाँ तक. योर होमवर्क इज यू पीपल विल बी ड्राइंग all the structures which has been discussed in today's class with your own hand, and at least 2-3 बार बच्चों you will be benefited. Right बच्चों, so we stop here and good luck. कुछ पूछना है, कुछ बताना है? Thank you, sir. थैंक यू सर. अरमान तो आज खूब सोया क्लास में, है ना? थैंक यू सर. Bye. नहीं सुना सर. चल, good luck.